जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी साध संगत जी, जय गुरु जी साध संगत जी। अज का मैं शुकराना सत्संग मेरी बच्ची दे संबंध च कर रही हाँ। शुकराना गुरु जी, तुसी बहुत 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 साथ दिंदे हो गुरु भा। थोड़ा किस तरह शुकराना करिए गुरु जी, समझ नहीं आता, वर्ड्स नहीं है मेरे पास गुरु जी कि किस तरह शुकराना किया जाए। गल उस टाइम दी है संगत जी, जदों मेरी बेटी वैसे बाहर तो आई गुरु जी साध संगत जी, पर उसनों हमेशा दर्द रहिंदा, काफ़ी पिठ च ओहदी च दर्द रहिंदा, कदी ब्लैडर च भी दर्द हो जाता गुरु जी। पर ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਸੀਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਈ ਪਾਸੇ ਵਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਗਾਇਨੀ ਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ MRI ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟਫੁਲ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਥਿੰਗ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, MRI ਵੈਸੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ 19 ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਸੁਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਲੱਡ, ਥੋੜੀ ਆਇਰਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ, ਬਲੈਡਰ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਗਏ, ਟੈਸਟ ਜੋ ਥੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਈ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਾਰਲਰ, ਸਕਿਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਔਰ ਹੇਅਰ ਕਟਿੰਗ, ਕਲਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਲਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਟ ਉਸਨੇ ਕੋਰਸ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਖੁਦ ਦਵਾਉਣ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ
ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨੇਲਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਲਰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੋਈ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਔਰ ਥਿਓਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਬਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਪੇਪਰ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ 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 ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਰਾ ਜਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਵੀ ਔਰ ਬੇਟਾ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਦਾਨ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था, आज मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है, मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ना जाने कौन सा कष्ट था, मुझे नहीं पता, पर 2 दिन से पता नहीं क्यों मेरे पीछे बैक साइड में जहाँ किडनी की जगह होती बहुत दर्द हो रहा था। आज मुझे दर्द नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वही आप मेरे दर्द का कष्ट क्या था, मुझे ऐसा लग रहा है, पर पता नहीं कि कुछ और भी रहा हो। जैसा भी हो, जो भी कष्ट लिया आपने गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आप चाहे तो आप इस
कोई भी छोटा बड़ा कष्ट उसको भस्म भी करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं गुरुजी। आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं? कोई भी कष्ट अपने ऊपर मत लिया करिए गुरुजी, मत लिया करिए, बिल्कुल भी ना लिया करिए। हम जानते हैं आप भगवान हैं, आप में इतनी ज़्यादा वो सामर्थ्य है जो किसी के अंदर नहीं है, आपके अंदर वो शक्ति है। आप चाहें तो उसको वैसे भी भस्म कर सकते हैं, फिर आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं गुरुजी? आप ऐसे ही भस्म कर दीजिए। आप किसी का दुख कष्ट अपने ऊपर मत लिया करिए, उसको ऐसे ही भस्म कर दिया करिए। हम लोगों को जो है सिर्फ 10% झेलना पड़ता है, 90% आप लेते हैं अपने ऊपर। तो हम लोगों को 10% में इतनी दिक्कत होती है, आप इतना ज़्यादा झेलते हैं, कितनी दिक्कत होती होगी आपको नाथ। आप अपने ऊपर मत लिया करिए सारा, ऐसे ही कोई कष्ट बीमारी हो किसी का भस्म कर दिया करिए, अपने ऊपर मत लिया करिए मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, आप अपने ऊपर मत लिया करिए। बाकी और क्या कर सकते हैं हम? बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा कष्ट काटा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लग लग बार शुक्राना गुरुजी। और ना जाने, मुझे नहीं पता आज तक, ना तो इन्होंने बताया भी है, क्या पता हमसे छुपा रहे हो। और आज सीने पे हाथ रख के कुछ ऐसे लगा कि जैसे इनको दर्द हो रहा, पर मैंने पूछा लेकिन बताया नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं कोई बॉडी का पेन किलर वैसे ही दे दो। और आपने सत्संग भी सुनाया आज शाम को कि हृदय रोग का कोई, कि मतलब ऐसे ही एक संगत आंटी बता रही थी, तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे आप उन्हीं के लिए सुनाए, भले इन्होंने हमको बताया नहीं। उसका निवारण भी आपने बताया हमारे पति अंकल के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आपने एक और उपाय सुनाया कि किसी बच्चे को कोई ही कोना टोटका लगा हो, कोई नज़र दोष, तो नींबू काट करके उस पर नमक लगा के 7 बार बच्चे के सिर से उबार के, चाहे कोई बड़ा उसके सिर से उबार के, और उसके बाद से उसको गैस पे रख के जला दे, जलाने के बाद बाहर फेंक दे। इसके लिए भी जिस संगत के द्वारा आप हमें सुनाए उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, और उनके जरिए आप हमको सुनाते आपको भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल की हर एक सांस से, हर एक धड़कन से शुक्राना गुरुजी। सारी ज़िंदगी अगर आपका शुक्राना करे तो भी कम है, सारा जन्म लगा दे। आपकी इतनी बड़ी बड़ी कृपा, आपकी इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग, सब कम है। पूरा जन्म लग जाए तो भी शुक्राना आपका पूरा नहीं हो पाएगा। फिर भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपके इस घर परिवार के, आपकी कृपा की छाँव में ये घर परिवार सही सलामत पल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत करोड़ों बार, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अरबों बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही समस्त जीव समस्त प्राणियों पे आपकी कृपा दया आशीर्वाद बनी रहे, पूरे संगत परिवार पे भी आपकी कृपा आपका आशीर्वाद हमेशा ही बना रहे, सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आप मेरे लिए भी कई बार हेल्थ से रिलेटिव कई बार कोई चीज़, बहुत सारे उपाय सुनाए, पर अफसोस हम कर भी नहीं पाते हैं गुरुजी, क्षमा चाहते हैं। आपने कई बार मुझे सुनाया, एक तो अर्जुन की छाल सुनाई आपने कि लौंग अर्जुन की छाल, और उसमें इलायची मिला के, और जो है अदरक इलायची लौंग अर्जुन की छाल मिला के उसको चाय पिए काढ़ा बना करके, तो बड़े से बड़ा कोई भी रोग हो उससे बहुत सारे रोग कटते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने जल प्रसाद में भी सुनाया कि जल प्रसाद में हल्दी चुटकी डाल के वो भी पियो, जो है खाली पेट पीते हैं तो फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आपने जल प्रसाद और चंदन मिला के किसी के चेहरे पर कोई छाई या जूनिया कोई दाना कुछ भी हो, कोई पिंपल कुछ भी हो, उसके लिए भी सुनाया कई बार ये उपाय, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सब पे आपकी कृपा बनी रहे, सभी संगत परिवार पे बनी रहे, सबकी रक्षा करेगा, सबके ऊपर आपकी कृपा दया बनी रहे। आपकी कृपा की छाँव में आपका ये परिवार, आपकी ये दासी, आपका पूरा संगत परिवार पले बड़े गुरुजी।
सबकी तरफ से अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे कई बार सुनाया कि मैं तुझे कितनी बार बता दिया, कितनी बार कह दिया कि संध्या वेले का शुक्राना सत्संग रोज किया कर, इससे हर रुके काम तेरे बनेंगे। संध्या वेला सत्संग करने से सारे रुके काम जो भी है, छोटे बड़े जो नहीं हुए, सब काम हो जाएंगे। तो मैं अब कोशिश करूँगी गुरु जी, सोचती रोज पर मैं कर नहीं पाती हूँ, पर अब मैं कोशिश करूँगी और कल ही से कोशिश करूँगी। कल सोमवार है, कल से ही मैं शुरू करूँगी गुरु जी। बाकी आप आशीर्वाद दीजिए कि हम जिस तरह सोच रहे हैं उस पर खरे भी उतरें और कर पाएँ गुरु जी। इसमें हम सबका ही भला है गुरु जी। आप इतना अच्छा हमारा मार्गदर्शन करें, उस पर ना चल पाए तो इसमें हमारी ही, जो हमारे लिए अच्छा थोड़ी ना है, हमारे लिए आप तो अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसमें हमारी भलाई है। अगर हम ना करें तो हम मूर्ख हैं, अज्ञानी पागल ही हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतना आप हमारे बारे में सोचते हैं। आज का शुक्राना सत्संग यही तक, हम बिना लिखे वैसे ही बोल रहे हैं गुरु जी। क्या पता कई बार कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं गलत, जो आपको ना अच्छा लगा हो, जो आपकी रजा में ना हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ गलती भूल चूक हो गई बोलने में, संगत जी आप भी मुझे क्षमा करिएगा। और ये जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करे, उनके परिवार पे बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी कृपा बनी रहे। पूरे संगत परिवार पे आपकी कृपा ब्लेसिंग बनी रहे, सरबत का भला हो। नानक नाम चढ़ती कला ताड़े बाने सरबत भला, सभी पे आपकी कृपा बनी रहे गुरु जी। संगत जी आप भी क्षमा करिएगा, आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगे कोई भूल चूक हुई बोलने में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। टेलीपैथी से मैसेज आया था, गुरुपा का पॉजिटिव मैसेज आया था, बेटा तेरा नज़र दोष मैंने उतार दिया है और तू शुक्राना कर। और एक मैसेज आया था, तेरा गोल्डन चांस है अभी और तेरा सब ब्लैक मैजिक उतार दिया है, तू शुक्राना कर। तो मैं गुरुपा के हुक्म से मैं शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने शाम में एक शुक्राना शेयर किया था कि थोड़ा सा बताया था, इन लॉज ने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया था, पर मैं नहीं गई थी, पर मेरे घर के लोग गए थे। तो गुरुपा ने जो भी कष्ट आया था आज मेरे पर, गुरुपा ने कष्ट कटवा दिया है और अपने पर लेकर कास्ट काटे गुरुपा ने और सब ख़त्म कर दिया है गुरुपा ने मेरा। और गुरुपा ने बोला है कि यहाँ से तेरा अच्छा होगा, अभी तो फिक्र मत कर और तू काम पे ध्यान दे, वो सब मैं देखूँगा। जैसे एक पिता ने कहा एक बेटी को बोलते हैं कि तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, तू फोकस कर तेरे करियर पे, बाकी का मैं सब देख लूँगा। उसी तरह गुरुपा इतने अच्छे से समझाए मुझे, तू सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे, बाकी का मैं देख लूँगा और तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ से ब्लैक मैजिक भी नहीं होगा, सब काट दिया है। एक टेलीपैथी मैसेज आया था, मीन्स संगत आंटी एक बता रही थी कि गुरुपा ने मेरा कष्ट कैसे काटे। पितृ जो मेरे पर नानी रहते हैं, उनके मेरे मम्मी के इसमें आके कहाँ से, तो वो पता नहीं, आइडिया नहीं है मुझे, सॉरी गुरुजी। तो उस तरीके से उन्होंने कटवाया मेरा ये पितृ दोष का भी और ब्लैक मैजिक का भी, वशीकरण का भी। और गुरुपा का ये भी मैसेज आया कि अभी वो मीन्स हस्बैंड अंकल का भी आया है, मेरा और हस्बैंड अंकल का भी अच्छे से जम रहा है और बहुत परिवर्तन आ गया है हस्बैंड अंकल में। गुरुपा ने बहुत मिरेकल्स किए हैं उनके साथ भी, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा, क्योंकि वो पहले जैसे हो गए थे। बाद में जब गुरुपा जुड़ने के पहले बहुत टेंशन था, घर में बहुत ये होता था, क्लैशेस होते थे। अभी वैसा नहीं है। अभी जी फ़ोन आ गया था, तो फिर गुरुपा ने उनका माइंड भी चेंज कर दिया, उनका पॉजिटिव माइंड किया है। और मैसेज आया था गुरुपा, अभी वो ना ये झूठे रिश्ते पे विश्वास नहीं करता है, वो सच्चे रिश्ते पे विश्वास करता है। तो तू अपना ध्यान रख और तू अपना जैसे मीन्स
विश्वास कर के रहना रिश्ते में, ऐसा गुरुपा मुझे समझा रहे थे। और ध्यान रखना आगे से, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को बहुत संभालते हो और अपनी बेटी को अच्छे से समझाते हो कैसे रहना, क्या रहना, कब क्या करना, कब क्या बोलना, ये सब कुछ आपको पता है गुरुपा। और आपने बहुत बड़ा चमत्कार किया आज हस्बैंड अंकल को वहाँ नहीं भेजा, एक क्लाइंट के पास भेजा है उनको। वो उनको अपना काम करवाना था इंटीरियर का, तो उनके पास ही मीटिंग चालू थी, तो वहाँ गए नहीं है। वो मेरा बेटा गया था मेरे इन लॉज के यहाँ, तो वहाँ से पार्सल लेके आया था, तो अभी वो घर पे ही खाएंगे। तो गुरुपा ने वहाँ पर भी उनको नहीं भेजा है, वहाँ रुका दिया है। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपार का एक छोटा सा मैसेज आया, मेरी बोली दी तो ये सत्संग सुन, तुझे समझ में आएगा। तो अभी मैं वो सत्संग पूरा सुनूंगी। और गुरुपा बहुत अच्छे मैसेज भेजे आज, और ब्लेसिंग भी भेजे, खूब सारे ब्लेसिंग दिए हैं आज गुरुपा ने। 777 777 555 555 2 ऐसे मीन्स बहुत ब्लेसिंग दिए गुरुपा ने। और देख बोले तू यहाँ से तेरा बहुत अच्छा होगा, देखते रह जाएंगी बोले दुनिया, बहुत अच्छा होगा तेरा 2025, जो तू चाहती है सब हो जाएगा। तू सिर्फ शुक्राना कर और सिमरन कर। और एक संगत आंटी का मैंने मैसेज सुना है कि तू ना वहम में मत पड़ा, मतलब मीन्स उसमें बता रही थी आंटी वहम में मत पड़ना, गुरुपा का पर फुल्ली सरेंडर कर देना और उनका सिमरन करना, उनका मंत्र जाप करना और शुक्राना करना। इतना गुरुपा उसमें बहुत मीन्स गुरुपा को विश्वास चाहिए और तुम्हारा प्यार चाहिए गुरुपा को, बस वही चाहते हैं गुरुपा, बाकी कुछ नहीं चाहते। तो वो सुन के मुझे अच्छा लगा गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आपने इतना अच्छे से समझाया और वो आंटी के थ्रू वो ये मैसेज भेजा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप कितने प्यारे हो, छोटी चीज़ से आप इतने खुश हो जाते हो और हमारी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हो गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अभी तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है गुरुपा ने, कैसा सरेंडर करना है, क्या करना है, ये सब कुछ सिखा दिया है गुरुपा ने। और गुरुपा का ये कहना रहता है तू ना टेंशन मत लिया कर, तू बहुत टेंशन ले देती है, मैं हूँ ना बेटा, यहाँ सब ठीक कर दूंगा, सिर्फ तू तेरा ध्यान रख, तेरा फोकस कर, तेरा घर पे ध्यान रख, बच्चों पे ध्यान रख, पति पे, और घर संभालने पे ध्यान रख, और तेरे ऊपर फोकस कर, और तेरी हालत क्या बना के रखी है, तू अच्छे से तैयार होके रहना है। ऐसा गुरुपा इतना अच्छा समझाते हैं, एक पिता अपने बेटे को समझाते हैं वैसे समझाते हैं गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ हम गलतियाँ करते हैं उसका भी गुरुपा सत्संग के द्वारा हमें बताते हैं कहाँ किधर कैसे गलती कर रहे हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि शुक्राना। मेरा सब कुछ आपने बहुत कष्ट हटाया गुरुपा, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ये मुझे कुछ नहीं पता था गुरुपा, अलग करने वाले कर रहे थे, अभी पता नहीं, अभी आगे आप ही देख लेना गुरुपा, जो भी है आप ही को ही करना है, आपको ही संभालना है, अपने बेटी का परिवार आप पे सरेंडर कर दिया है गुरुपा, आपको ही चलाना है सब कुछ। अभी मैं समझ गई गुरुपा, और थोड़ा बहुत जो भी है अभी मुझे पूरा नहीं समझ में आया गुरुपा, आपसे मैं सीखूंगी गुरुपा, आप बताएंगे वैसे ही राह पे मैं चलूँगी। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आप अच्छे से बताते हो अपनी बेटी को। और गुरुपा अगर इस बेटी कुछ बोलने में गलती करती है तो प्लीज़ क्षमा करना गुरुपा, प्लीज़ क्षमा कर देना। और संगत आंटी जी ये शुक्राना जो सुन रहे हैं उनको भी खूब सारे ब्लेसिंग देना गुरुपा, उनको भी हेल्थ और वेल्थ से ब्लेस करना। और जो शुक्राना शेयर कर रहे हैं आंटी अंकल, उनको भी हेल्थ और वेल्थ से ब्लेस करना गुरुपा, उनकी फैमिली को भी सुरक्षा करना गुरुपा। और आपने इतना अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया गुरुपा, और आपने बोला है कि सब कुछ तेरा अभी ख़त्म हो गया है, उसके लिए शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा। अब आप भी ख्याल रखो गुरुपा आपके ऊपर, और हमें अच्छे कर्म करने की आदत लगा गुरुपा, और हम अच्छे कर्म करें, और हमको समझाते गुरुपा, जहाँ गलत है वहाँ बताते, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए वैसा। सॉरी गुरुपा, अगर मैंने कुछ बोलने में गलती कर दी, किसी से मैंने फ़ोन पे कुछ बोल दिया तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और यहाँ पर शुक्राना विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमो
शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, सरबत का भला करना जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं आरंभ करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का कैसे शुक्राना अदा करूँ, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे गुरु जी हमें दुविधा में से इतना आसानी से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, मेरे मायका परिवार में प्रॉपर्टी को लेके मेरे भाइयों में आपस में मुटाव था और बोलचाल बिल्कुल बंद थी। और बहन होने के नाते मेरे साथ भी मेरे बड़े भाई की काफ़ी कहा-सुनी हो गई। छोटा भाई जो कि अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड में है, उसने अभी अपनी तरफ से साइन करने थे। जैसे कि हम सभी भाई बहनों के साइन होने थे, उसके भी साइन होने थे। तो क्योंकि उसे जब बाहर जाना था तो अपने हिस्से के बराबर उनसे पैसे ले गया था। पर अब बड़े भाई ने अपना मकान अपने नाम करवा कर नया बनाना था, क्योंकि वो काफ़ी अब खस्ता हालत में हो चुका थी, वो नया बनाना था उसने। इसलिए सभी बहन और भाइयों के साइन जो थे प्रॉपर्टी उसके नाम होने के लिए चाहिए थे। पर छोटा भाई और भाभी जो कि उनका बड़े भाई का भी या और किसी भी रिलेटिव का, मेरा बहन का या किसी भाई का फ़ोन नहीं उठा रहा था और काम काफ़ी बिगड़ा हुआ था। फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी वो मान जाएं और फ़ोन उठाकर बात करें। तो संगत जी, पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि जो काम तू कह रही है बेटी, वह दिसंबर से पहले पहले हो जाएगा। पर जब तक काम हो नहीं जाता, पूरा नहीं हो जाता, तब तुमने किसी के साथ यह बात नहीं करनी। फिर संगत जी, मैंने भाई को ऑडियो मैसेज करा क्योंकि फ़ोन वो उठा नहीं रहा था। फिर उसने मेरे साथ फ़ोन पे बात करी मेरे मैसेज करने के बाद, और मुझे इधर से पेपर भेजने को कहा कि मैं भाई से बात करूं, बड़े भाई से, और उसे कहूं कि मुझे पेपर इधर भेज दो और मैं साइन कर दूंगा। और मेरे छोटे भाभी जो कि मेरे बड़े भाई के साथ कभी बात नहीं करती थी, उसने भी मेरे भाई के साथ बात करी और मामला जो है काफ़ी सुलझ गया। अब उन्होंने पेपर साइन करके उधर अब्रॉड में इसका प्रोसेस शुरू कर दिया है। फिर दिसंबर एंड तक वो इंडिया भेज देंगे। तो मेरे मन को इतना सुकून गुरुजी ने दिया कि उनका शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप जैसे गुरुजी का मिलना सौभाग्य है। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मेरे गुरुपा की बहुत बहुत ब्लेसिंग है, बहुत बहुत कृपा है। मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, मैं सत्संग सुनाने में मुझसे यदि कोई गलती हो जाए तो आप और गुरुपा मुझे नादान समझकर, बुद्धिहीन समझ के क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि संगत जी मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। वैसे तो संगत जी, हमारी ज़िंदगी में जब से गुरुपा ने हमें संभाला है, हमारा हाथ पकड़ा है, मेरे तो रोज़ ही सत्संग है, रोज़ ही शुक्राना करने का मन करता है। लेकिन संगत जी, मैं थोड़ा सा बीमार चल रही हूँ, इसलिए जब मुझे वक्त नहीं मिलता, मैं बीमार चल रही, मुझे वक्त नहीं मिलता, सारा दिन घर में बिजी रहती हूँ, काम करती हूँ, तो मैं समय नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आज दूसरे दिन का सत्संग इस टाइम रात के 1 बज गया है शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है कि जितना भी शुक्राना करूँ कम है। गुरुपा ने तो मुझे पल पल संभाला है। गुरुपा ने मुझे बस कुछ दिया है, बहुत, वैसे तो सब कुछ दिया। गुरुपा से तो कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, वो तो इतना देते हैं कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। संगत जी, गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है। गुरुपा, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था
कि हमें मकान ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमारा एक डॉगी है। फिर गुरु पाक की आशीर्वाद और ब्लेसिंग से हमें नया मकान मिला, जो कि अच्छा है। हमारा डॉगी उसमें अच्छे से रह पाता है, बाहर घूमने देखता है, बाहर जा जा के घूमता है, फिरता है, सब करता है। और गुरु पाक की ब्लेसिंग है, गुरु पाक ने ही उसे हमें ब्लेस किया है, जिसके लिए मैं गुरु पाक का शुक्राना करती हूँ। पता नहीं कौन सा पिछले जन्म का हमारा उसका नाता है कि वो हमारे घर आया, गुरु पाक ने उसे ब्लेस किया, जिसके लिए मैं गुरु पाक ने भी उसको न्यू लाइफ ब्लेस की है। जब वो हमारे घर आया था संगत जी, तो वो बहुत छोटा सा था और अचानक उसे बड़े बड़े डॉगी उसे मार रहे थे और वो बहुत रो रहा था। फिर मेरी दोनों छोटी आंटियाँ उसे उठाकर अपने हमारी पार्किंग में ले आईं और फिर हमने उसको नहलाया। रात भर तो वो बेचारा रोता रहा, फिर हमने उसको नहलाया धुलाया, फिर सुबह उसको नहलाया धुलाया। तो वो लेकिन उसकी तबीयत ख़राब थी संगत जी, उसको पार्गो हो गया था, वो बार बार लैट्रिन कर रहा था ब्लड वाली। फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, फिर डॉक्टर ने उसको ड्रिप वगैरह चढ़ाई, बोला कि 7 दिन से ड्रिप चढ़ेगी। तो गुरु पाक ने उसे ब्लेसिंग दी, उसे नई लाइफ दी है और आज वो 3 साल का होने वाला है। अब उसका 14 अक्टूबर को उसका बर्थडे आने वाला है संगत जी। वैसे तो मेरा स्ट्रीट डॉग है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है। जो भी हमारे घर में आता है संगत जी, उसके ही पैरों में पड़ जाता है, काटता किसी को नहीं है, बस हमें ही काटता है वो संगत जी। हमारे साथ ही सोता है बेड पे, बस हमारी ज़रा से उसकी टांग वगैरह लग जाए तो काटने को दौड़ता है। लेकिन फिर भी हम तो उसके बिना रह नहीं सकते, मैं तो नहीं रह सकती संगत जी उसके बिना, क्योंकि वो तो मुझे अपने बेटे की तरह, अपने बच्चे की तरह प्यारा है। और मेरी दोनों आंटियाँ भी अब मेरे डॉगी के बिना रह सकती। जब मैं कहती हूँ ना मैं इसे छुड़वा दूँगी तो वो रोने लग जाती हैं। और संगत जी मेरे गुरु पाक ने तो एक बार उसने चूहे मारने वाली दवाई खा ली थी, मैं सत्संग में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरे गुरु पाक ने ही इसको न्यू लाइफ ब्लेस की। उसने वॉमिटिंग कर दी, जैसे ही हम उसको ले जाने लगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, इसने वॉमिटिंग कर दी है तो अब ये ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। संगत जी वैसे तो मेरी ज़िंदगी में रोज़ ही गुरु पाक के सत्संग है, गुरु पाक इतना ब्लेस करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। गुरु पाक ने मुझे और मेरे परिवार को ऐसा संभाला है, बस संगत जी जितना भी शुक्राना गुरु पाक का करूं उतना ही कम है। संगत जी हम जब से इस मकान में आए हैं 2-3-4 महीने तो ठीक रहे गुरु पाक की कृपा दया से, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैं बहुत बीमार हो गई और मुझे गुरु पाक के बार बार मैसेज फ्लैश होते थे कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है और तेरे किसी अपनों ने ही किया है। और मैं बहुत बीमार हुई संगत जी, और मुझे फीवर वगैरह हो गया। फिर मेरी दोनों छोटी आंटी कहने लगी मम्मी, अब मैं कहीं पर गई थी तो वहाँ से आके मुझे 2-3 दिन बहुत फीवर रहा, और मेरी बेटी कहने लगी मम्मी आप अस्पताल जाओ, हॉस्पिटल जाओ। और जैसे ही मैं संगत जी हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, लेकिन गुरु पाक की इतनी कृपा और ब्लेसिंग है कि वो मेरे टेस्ट में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस यही डॉक्टर बोलती थी कोई बड़ी बीमारी दिख रही है, लेकिन गुरु पाक के मुझे मैसेज आते थे बेटा। तो गुरु पाक ने मुझे बहुत बड़े अच्छे सत्संग सुनवाए, कैंसर के सत्संग सुनवाए, दर्द के सत्संग सुनवाए, क्योंकि संगत जी मुझे गठिया बादी है और मेरे ज्वाइंट में पूरा पेन रहता है, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ रहती है। ख़ास तौर पे मुझे टांगों में बहुत प्रॉब्लम है, मैं चढ़ने उतरने में और बैठने उठने में बहुत मेरे को प्रॉब्लम होती है, बहुत दर्द रहता है। फिर मेरे गुरु पाक ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है और गुरु पाक की कृपा से ही मैं आज अपना ये सत्संग आपके सामने अपने गुरु पाक के समक्ष पेश कर रही हूँ, जिसके लिए मैं अपने गुरु पाक का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। गुरु पाक तो हमेशा हमारे संग रहते हैं संगत जी, और हमें पल पल ब्लेस करते हैं। गुरु पाक तो जानी जान है, गुरु पाक बेहतर नहीं देते हैं, इसलिए गुरु पाक को मांगो ना उनसे। गुरु पाक के जिन गुरु पाक को सब पता है, वो सब जानते हैं, जानी जान है। और मैं अपने उस महाशिव अपने भोलेनाथ अपने गुरु पाक का अनंत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे अपनी संगत बनाया, मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे मेरे परिवार को ब्लेस किया। मैं अपने गुरु पाक ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा है, मैं तो बस गुरु पाक के सामने यही अरदास करती हूँ उनके सामने कि मेरे गुरु पाक ऐसा कि ज़िंदगी में कभी कोई दिन ना आए, हर जन्म में आप मेरे गुरु पाक मेरे माता पिता बनना। संगत जी आज का सत्संग बस इतना ही था, और गुरु पाक की बहुत ब्लेसिंग है, जिसके लिए मैं गुरु पाक का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, आंटी जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है
कि गुरु पा का जैसे मुझे आदेश हुआ है कि बेटा 9 दिन सत्संग शेयर करना है, तो प्लीज़ आप मैं जो भी रोज़ सत्संग शेयर करूं, आप मेरे सारे सत्संग शेयर कर दीजिएगा अपने प्लेटफॉर्म पे, जिसके लिए मैं गुरु पा से यही अरदास करूं कि गुरु पा में जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करें, उन्हें भर भर के ब्लेसिंग देना, सारी संगत जी को, सारी अपनी बेटियों को भर भर के ब्लेसिंग देना, और गुरु पा सबके दुख कष्टों को हरना, सब पे अपनी कृपा करना, सबदा भला करना, सबदा कल्याण करना। अब मैं संगत जी अपने कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।